बहरहाल आज हम जिस पे बात करने वाले हैं उसे आप दो अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपने उसका आर्टवर्क देखा हो तो आर्टवर्क कहता है मी नो पॉज या मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसी प्रॉब्लम बोलें, आप उम्र के साथ बदलता हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दें, या फिर ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई जो एक्सेप्ट करनी होती है हर महिला को। उसके बारे में डिटेल बताने के लिए हमारे साथ हैं नागपुर शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर शांतला भोले मैम। मैम गुड मॉर्निंग। Good morning, Raj. Ma'am, you're getting prettier day by day. Because this topic also is making me look pretty, na? Yes. Menopause. हाँ, तो मैम आपने भी शायद बोला है ब्यूटी को, ब्यूटी नो पॉज, आई विल बी मोर ब्यूटीफुल नाउ। मैम एक्सेप्ट कर लें उम्र के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसको झुटलाया नहीं जा सकता? I like the word transformation. You know what? I think aging is a privilege. You know, हमको if you're getting those extra years in life, ask somebody who could not live beyond 30. They'll say aging is a privilege. So I think menopause is also a privilege कि आपको you're getting this opportunity to experience a different phase of your life. जैसे in females, menarche heads, beginning of periods, फिर reproductive age group when you have children. Similarly, menopause का एक phase है wherein our ovaries stop functioning धीरे-धीरे and the hormones जो रहते हैं estrogen and progesterone जो हमारे लिए बहुत important है, वो उसके लेवल्स कम होते हैं, उसकी वजह से कुछ कुछ चेंजेस हम लोग देखते हैं। सो इसको वी कॉल मेनोपॉज। एंड यू नो व्हाट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया टुडे इज ऑलमोस्ट 70 years, you know, 69.9 years. So compared to around 30 to 40 years back, our life we are living longer. So that is why we are experiencing menopause also. पहले ऐसे होता था कि if you check 100 years back, maybe the life expectancy was hardly 40 years. तो मेनोपॉज के पहले ही लोग they used to die before menopause. So this is actually a blessing that we're getting to live for so many years and we're getting to experience menopause. And menopause के बारे में बात किया जाए तो you can take it any way. It can be a progression in life, it can be a new life. Some women think of it as a second life because you know your responsibilities are less. Freedom from periods is one more example, you know. So they think it's a new life, it's a second life also. मैम अगर सिर्फ बेसिक से बात करें तो व्हेन डज मेनोपॉज स्टार्ट? So it starts, it's different for each woman, पर globally ऐसा देखा गया कि average age of menopause worldwide is 50 years, पर इंडिया में थोड़ा जल्दी आता है, तो इंडिया में 46.2 years is the average. So normally between 45 to 50 years is you can think, you can start experiencing the changes, and ये एक दिन में नहीं होता है, it takes time. If you'll notice कि before period stop completely, एक दो साल पहले से थोड़े थोड़े changes शुरू होते हैं. Many women complain of irregular periods, sometimes ज़्यादा, sometimes कम, weight gain, फिर you know changes in skin and all. So when I talk about menopause, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ कुछ एक्सटर्नल चेंजेस हैं, जैसे बहुत सारी औरतें बोलती है कि अभी मेरा वेट बढ़ता है, कम ही नहीं होता है जी, आई डोंट फील वेरी एनर्जेटिक, एनर्जी लेवल्स कम हुए हैं, स्किन चेंजेस, यू नो, स्किन बिकम्स ड्राई, इरिटेबल, देन टीथ में भी डेंटल चेंजेस होते हैं, आई चेंजेस होते हैं, एंड देयर आर मेनी चेंजेस जो हमको दिखते नहीं है पर वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और उतने ही रेलिवेंट हैं। लाइक हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था रिगार्डिंग बोन हेल्थ, यू नो, ब्रिटल बोन्स विद एज, विद मेनोपॉज योर बोन स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। ऑल्सो मेंटल हेल्थ, you know, there is increased incidence of depression and anxiety after the period stop. Sleep disturbances, नींद अच्छा नहीं होना, sexual disturbances because of local changes, because of absence of estrogen, local vaginal dryness या urinary complaints, ये सारे changes आपको दिखेंगे. Many of them are temporary, जैसे some women say कि हमको hot flushes हो रहे हैं, वो normally temporary होते हैं, कुछ कुछ after some time they go away on their own या they can be treated, but some changes are irreversible, you know, progress होते हैं. So we need to be aware of all this. बट मैम कब एक ऐसा स्टेट आता है जब क्योंकि इंडिया में आपने कहा कि 46 years इज एन एवरेज एज वेयर यू एक्सपीरियंस मेनोपॉज, तो मैम एकदम से ज़िंदगी में बदलाव आता है, जो मंथली साइकिल्स जो चलते आए हैं अब तक या जो मंथली प्रिकॉशंस महिलाएं लेते आई हैं, वो प्रिकॉशन से कहीं ना कहीं आज़ादी भी मिलती है और एक नया एक्सपीरियंस का एहसास होता है। तो क्या हम ये कहें कि इन मैन दे से 40 इज़ नॉटी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर वुमेन 50 इज़ द न्यू गर्ल लाइफ?
Yes, you can actually आप वैसे सोच सकते हो because you're getting freedom from periods. In fact, periods की वजह से the entire life of women sometimes I feel it's regulated by periods. You know, you think of the period before exam, कहीं घूमने जाना हो, कैसे planning करना पड़ेगा, pregnancy planning. अगर infertility है तो periods are such an important part in a woman's life. And ये चीज होने के बाद many of them actually some of them might also feel कि मेरा womanhood कम हुआ है. You know, like my essence of feminism, my femininity is reduced. But many of them actually are very happy about it. Ki now we are free from all this, and now we can do what we want to do. Provided we are healthy, you know. So health is very important, and you know, Raj, we have been talking about women's health, and बहुत सारी चीजें हमने already discuss किया है regarding women's health. One thing that is very important is the metabolic syndrome. So what is metabolic syndrome? It is a combination of hypertension, diabetes, and heart disease and hypercholesterolemia. अगर आप देखोगे टिल द एज ऑफ अबाउट मेनोपॉज यानी 45 या 50 तक men are more prone to these diseases, women are protected क्योंकि हार्मोन्स की वजह से हमको प्रोटेक्शन मिलती है जी. बट आफ्टर मेनोपॉज हमारा भी उतना ही रिस्क बढ़ता है जितना men है. सो वी आर अगेन वी बिकम एज प्रोन एज men टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल. सो इसी का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. तो कुछ नंबर्स, आपका मैथ्स अच्छा है क्या राज? नहीं. मे बी आवर व्यूअर्स आर गुड इन मैथ्स. तो एक कुछ नंबर्स आपको याद रखना पड़ेगा. अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 35 इंचेस से ज्यादा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/85 से ज्यादा है, और ये नंबर्स याद रखना 50, 100 and 150. Ma'am, you talking like one algebra teacher people don't like. ये तो इजी है. 50, 100, 150 मल्टीपल्स ऑफ 50. ठीक है. आपका ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से ज्यादा है, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ज्यादा है, और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल या HDL 50 से कम है जी. So all these factors say that you might be prone to मेटाबॉलिक सिंड्रोम. और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर आप में है तो आपके बाकी डिजीजेस का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इवन सम कैंसर्स. सो एक चीज अगर आपको याद रखना है तो ये नंबर्स आपको थोड़े ठीक करना है. और जैसे राज बोलते हैं ही डजंट लाइक अलजेब्रा, तो आप एक कोई टीचर को पकड़ लेना जब तक पूरा आपका रिवीजन करा देगा. सो यू ट्राई टू गेट दीज नंबर्स अंडर कंट्रोल. सो योर मेनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी प्रिवेंटेबल बिकॉज ऑफ दैट. But then ma'am, women, specifically ladies, are very prone to get, or diabetes or blood pressure, है ना? They are not actually. जब तक menopause नहीं होता है, they are protected. Right, they are protected. But the moment menopause start, में वही मेरा सवाल है कि menopause start होता है, उसके बाद they are prone to get these kind of diseases also. Yes. Yeah. So then you say that keep a balance to it. But then ma'am, when people who do not have a balance, आप 44 क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको पता है कि आने वाले 2 साल में आई वुड बी इनटू अ स्टेट वेयर आई स्टार्ट माय मेनोपॉज लाइफ, है ना? बट देन अगेन यू नो दैट यू हैव डायबिटीज, देन व्हाट? So you can see all these factors can be controlled now. Lifestyle diseases का मतलब क्या है? आप अपने lifestyle में change लाइए तो उसका भी impact कम होता है. Diabetes is something that can be controlled with your diet and your exercise. हमने already discuss किया है. So it's always better to be prepared ना. कोई भी चीज़ अगर आपको पता है कि ये होने वाला है, so why not start preparing for it beforehand? अगर आपने पहले से किया नहीं होगा तो. So women who reach the age of 40, अभी भी 4-5 साल है, क्या करना शुरू कर दें? लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू कर दें. स्टार्ट वॉचिंग व्हाट दे ईटिंग, स्टार्ट वॉचिंग वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या, ऑफिस में बैठ के दिन भर काम कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं. सो दे नीड टू स्टार्ट वॉचिंग फॉर ऑल दिस. एंड छोटे छोटे चेंजेस अगर आप लाएंगे, छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू रीच मेनोपॉज. बिकॉज इवन अदरवाइज नहीं तो women are very frustrated कि मेरा वजन कम ही नहीं होता है, एकदम वजन बढ़ गया, and they blame menopause for it. है ना? So a lot of men also say this, and I've heard this, ma'am, that when they have fights together, हमने फिल्म एक दो वेब सीरीज में भी मैंने सुना मैम कि the man says that you have a menopause issue and that's the reason you're fighting with me. So that happens? Yes, I think that is a very important issue that we need to talk about. That is mental health. आपको पता है we have happy chemicals in our body. I don't know if you have heard of them. It's called serotonin, dopamine. So they are the happy chemicals. जी. और ऐसा देखा गया कि एस्ट्रोजन जो है उसका डायरेक्ट लिंक रहता है सेरोटोनिन के साथ. तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो सेरोटोनिन का भी लेवल कम हो जाता है. And that is the reason why many women experience a lot of depression, anxiety, lack of interest during, especially even before menopause starts. So see, I'm not a psychiatrist, but I know something that अगर आपको कुछ symptoms है, you should try and consult a professional.
like जैसे when it comes to psychological symptoms we can talk about physical symptoms. मैंने विमेन से कि मुझे बहुत थकावट होती है, फटीग होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, या नींद अच्छी नहीं हो रही है. These are some physical symptoms. Then comes some emotional symptoms. The feeling of anxiety, empty लगना अंदर, hope नहीं है मेरी जिंदगी में. और तीसरा है behavior, you know, like not taking care of your appearance, not caring about how you look. आपकी कुछ हॉबीज थे पर अभी आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. ऑल्सो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल होता है, मेमोरी पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है. सो ऑल दीज चेंजेस अगर ये सब है आपके लाइफ में और एंड दीज लास्ट फॉर मोर देन 2 weeks, देन इट इज यू नीड टू लुक इनटू इट, यू नीड टू सी एंड कंसल्ट अ प्रोफेशनल. सेकेंड चीज़ है जो बहुत बात नहीं होता है, दैट इज स्लीप डिस्टर्बेंस. यू नो इन मेनोपॉज वुमेन टू एक्सपीरियंस स्लीप डिस्टर्बेंस. इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू इनिशिएट स्लीप एंड जल्दी सुबह नींद खुल जाती है और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छा नहीं होता है. So this also may lead to a lot of other problems like anxiety and all. So these are 2 things that we should really focus on in menopausal women, I feel. And ma'am, the last thing is I really want to ask you, ma'am, menopause को अगर हम देखते हैं तो it means that you should never stop, never give up. Yes. Yeah, there is one thing you would like to say all the men when the moment they come to know that their wife or their better half have started the journey of menopause, what should they do? This time I was expecting this question because हमेशा आप मुझे husband वाला advice तो पूछते ही हो ना. Ma'am, I have to ask you. जी. You know what, men I think should take care of themselves. You know there's a thing called andropause as well. Men also go through some form of menopause wherein उनके भी hormone levels कम होते हैं और they are also more prone to such diseases. So men, take care of your health. And 2, leave the women alone. Let them live life the way they want to. Super. Ma'am, I think this will really help a lot of women out there and Yes. Today's session would go places. तो आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने ज़िंदगी को बिना पॉज किए कैसे खूबसूरत और बना सकते हैं वो आपने बताया. आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी शुड टॉक अबाउट ब्यूटी टिप्स मैम. I'm not a skin specialist to talk about beauty, but I can definitely talk about inner beauty. You know, the beauty that comes out of eating right, exercising, doing meditation and all that. Yeah, and so- I honestly feel that if you are experiencing menopause, it's a blessing. आपके जो भी problems हैं छोटे मोटे, they can be treated. एंड सी राज, और एक चीज ये है कि हमेशा लगता था कि हाँ एस्ट्रोजन कम हो रहा है तो एस्ट्रोजन दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, सप्लीमेंट दे दो जी. बट अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि हार्मोन सप्लीमेंटेशन के अपने खुद अलग डिसएडवांटेजेस और कॉम्प्लिकेशंस हैं. सो हार्मोन्स हम लोग स्पेसिफिक देते हैं टारगेटेड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. सो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, कंसल्ट अ डॉक्टर, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा which will help you live your second life and which will make it more beautiful, you know. Super. I think with this quote, people can take this as a motivation and live very happily. But आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. डॉक्टर शांतला भोले मैम से मुलाकात हुई. आज मेनोपॉज के बारे में मीनोपॉज के बारे में बात हुई. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट हैविंग एन इंटरव्यू एवरी वेडनेसडे विद शांतला मैम व्हेन शी टॉक्स अबाउट हाउ कैन नॉट जस्ट वुमेन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ बट ऑल्सो मेन इन द होम कैन टेक केयर ऑफ द वुमेन ऑफ द होम. बिकॉज हम सब ये बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि एक घर जो है वो महिला से ही है, लेकिन जब महिला की हेल्थ की बात आती है तो आज भी ऐसे कई सारे घर हैं जहाँ पर महिलाओं के हेल्थ के ऊपर में ना ही सिर्फ फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. बहरहाल जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट नो पॉजेज. आप जिंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल ना रुके. वो असफलता हुई या फिर कहीं आप फेल हो गए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए, या वो मेनोपॉज हो, ज़िंदगी रुकती नहीं है. तो इसको इस तरीके से देखने का बड़ा अच्छा तरीका है. इट्स नॉट नथिंग, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड मेनोपॉज फ्रॉम नाउ. देयर इज नो पॉज. डोंट स्टॉप, कीप गोइंग. और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मज़ा है जीने में. जिंदा रहें. जय हिंद.